वेलकम टू डिटॉक्स। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आई गॉट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। Hi, I'm Tanya. Hi, I'm Neera. I'm Anushka. मेरा नाम बाबू पाशुपति है। So we continue to be the no nonsense NGO. People fight, feeders. I have faced it. These are my personal experiences. People have come and abused me, threatened me कि तुम्हारा बंद करा दूंगा. मेरा सबसे ज्यादा एफर्ट जाता है just to tell the animal lovers that don't fight amongst each other. My next question is open to everybody and it's my favorite topic. I have only good things to say. Tell me about Priya. I think she's the mother of Yoda. एनिमल के प्रति मतलब कभी भी उनको फोन करो या कुछ करो तो कभी मना नहीं करते। She obviously has like a really big compassion towards animals, but I would like to add that she's really compassionate towards humans as well. She being Priya Agarwal, she is too grounded a person. I mean, I have never ever seen a person like her. Not taking away the work of all the founders. So we'll talk about Akash. He's the invisible warrior. And he's the number guy. There are problems that I can't solve. And that's when I call Pooja. And she got so mad. पूरा मंगे सब got full email. Rajda के साथ I've had like few interactions, and she's very sweet, very understanding. So I would like to just add one more thing about our CEO, Mr. Dheeraj Tejwani. Okay, embarrass me now. आपकी वजह से we can stand a little better. We were walking, but you made us run now. कभी भी ऐसा मतलब लगता नहीं है सामने सीईओ सर बैठे हैं या कुछ लगता है कि अपना दोस्त है। Talk about adoptions at Yoda. Let people know about how we do adoptions. It's an appeal, so people should. Just come forward. Yeah. We have more than 27 animals right now at the shelter who are struggling to find homes. So they are looking for homes. I want to take this clip out and then push it to as many people as we can. Okay, next up is Babu Dada. He's the hero of Yoda. Everybody knows him. Everybody depends on him. Talking about sterilization, I think we'll let Babu Dada also talk about sterilization. पिछले 2 साल में लगभग 5000 के समथिंग हमने कैट किए हैं, 2000 के ऊपर डॉग किए। मिली का स्टोरी बताओ Oh, प्लीज। beautiful. स्टार्टिंग से बताओ Please मिली बताइए. का। छोड़ने का टाइम था ना, वो गेट पे गया था, मैं हॉर्न किया गेट खोलने के लिए, मेरे आंख में आंसू थे। उसको मतलब वो सिचुएशन में देखा है और वहां से फिर मैं अभी उनको छोड़ने वाला हूँ। मन ही नहीं कर रहा था कि भाई छोड़ो उनको। बाबू दादा ने मुझे ये बताया, आप सिर्फ एक बार हाँ बोलो, कुछ करने के लिए मैं खुद जाऊंगा उसे छोड़ने, आपसे हाँ बोलो। 150 करोड़ लोग हैं देश में, 15 करोड़ स्ट्रीट एनिमल्स हैं। आप अगर 10 में से एक इंसान अगर अडॉप्ट कर ले, सारे स्ट्रीट एनिमल्स गायब हो जाएंगे। कोई पपी या डॉगी को खाना देना शुरू करे, थोड़ा प्यार दे, तो इस दुनिया में ना कोई भी एनिमल सफर नहीं करेगा। We need to be more united, more compassionate towards each other. Our Yoda's core principle about just putting our head down and doing the work, and if you do that long enough, people will fall in line. I mean, if I could call a place heaven on earth, then Yoda is the place. I can't argue that, definitely. Welcome to Detox. आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है because I've got the best team in the world. And I don't want to introduce anyone today. I will let the guests introduce themselves. It's a beautiful team. So we'll start with Tanya. Tanya, also known as Tanaya. Go ahead. Hi, I'm Tanya, so popularly known as Tanya, but my name is Tanaya Paul. I'm from Calcutta. I'm an actor. I came to Bombay because obviously I was interested in this acting world, and but deep down I always had this love for animals, and especially I've always been into dogs. I've been raised with dogs, and I don't even remember from when I had this thought in my mind that I want to do something for these stray animals, because I feel in our society, they are very neglected. Nobody really takes care of them. They don't have food, no shelter, no care. I mean, not even, maybe a little concern. Nobody even looks at them. So that is something that I always wanted to get into. At least, the least I can provide is maybe little food, little clean drinking water, and maybe, shelter. So yeah. And my journey with Yoda started very recently. Till now, it's been like a very, very good journey. I'm very, very happy, and I'm very blessed to be a part of this, journey, because I have some wonderful colleagues. Like you can see, you'll meet all of them today. And I think the best part of Yoda are the babies.
I think they are all my babies, and it doesn't feel like work to me because, every day when you go to work, you have to really, get up in the morning, motivate yourself, and say, okay, now I have to go to work. But for me, I just feel like, oh wow. I mean, I have let's to pull just you out of work. Sorry, interjecting there. Yeah, yeah, yeah. Going to work is not a problem. To Yeah, get yeah, her yeah, out of yeah. that place. Actually, so basically, I have to remind myself, okay, now I have to go home because my babies are waiting. But yeah, I mean, I feel that this place, I mean, if I could call a place heaven on earth, then Yoda is the place. I can't argue that, definitely. Next up, I think I should talk about Meenal a bit. Meenal is our whole and soul because she's also in HR. She manages our shelter operations. She manages a lot of other things that I keep dumping on her. So, Meenal, why don't you introduce yourself? Okay. Hi, I'm Meenal. So, I'll tell you where I started my journey for animal welfare. I think since childhood, I have been like feeding street animals, especially cats, because I remember my parents have always been inclined towards, feeding street cats. And मेरे ना पापा का बिजनेस था तो वहां पे ना बहुत सारे चूहे आते थे तो पापा पहले सोल पर्पस उनका ये था बिल्लियां लेके आते थे वो कि ना चूहे भाग जाए बट होता ये था कि चूहे और बिल्ली दोनों साथ में रह रहे हैं और हम फिर दोनों को ही खाना दे रहे हैं yeah that's how I have grown up I always wanted to do something for animals but I think पहले उस टाइम पे वो डायरेक्शन मिलना बहुत मुश्किल था and everyone is more inclined towards nahi do well academically like study more so my parents pushed me to pursue engineering of course so I did IIT ka coaching for 2 years कहाँ से? and कोटा? nahi Jaipur only they didn't want me to go somewhere but like Jaipur was also like kind of hub for Yeah. studying engineering right so my brother is also an engineer he's in US now so my parents pushed me I did that and I scored well as well but then I was like okay now I have to start my rebellious phase I have always been a rebellious kid you can see that at work Yeah. so वो मेरा बचपन से ही था I have always been rebellious so yeah I was like कि कुछ भी कर लूंगी मैं मेरे को बस इंजीनियर नहीं बनना तब भी एनिमल वेलफेयर के बारे में मेरे पास कोई क्लू नहीं था हाउ टू गेट इनटू इट I had pets of course so I did fashion designing nothing else was there for me to do I pursued fashion designing shifted to Mumbai in 2016 since then I've been living over here alone supporting myself the journey from here to Yoda was like a lot actually I was working in industry not as an actor but I was Behind the working scenes. yeah behind the scenes I worked as a stylist I worked as a casting director and everything was like I have met some good people but it was like never like soulful for me Got it. yeah so during lockdown I like stopped working over there and I was looking for something and one fine day when I was scrolling through Instagram that's when I found the post for assistant sterilization manager at Yoda I approached Miss Priya she called me for an interview पहले उन्होंने सिर्फ एक दिन ट्रायल के बाद मुझे भेज दिया घर then they called me back like after I think 2 weeks after 2 weeks she called me and उस 2 हफ्ते में I was like कि नहीं यार नहीं होने वाला I'll look for something else but I really wanted to work at Yoda I like one day when I went to the shelter I went to the Chewem one and I saw all the animals I met tiger over there tiger के लिए मुझे बोला गया था वो सब पे भौंकता है but when I went he didn't bark at me मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन टाइगर के साथ वो था एंड एवरीवन वाज लाइक नहीं इसके पास मत जाना बट वो मेरे साथ बहुत काम था एंड आई वाज लाइक नो आई वांट टू वर्क ओवर हियर बट 2 हफ्ते कोई कॉल नहीं था बट देन शी कॉल्ड मी एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद योडा एंड नाउ इट्स बीन व्हाट 3 years 3 good years. And also one quick fact about Meenal. I remember when I met Priya in Khar shelter before joining Yoda. I remember she telling me you quit every day that time. Yes, Every I day used you would to. resign. You will cry. You're like I can't work here, and you will go. Yes. And look at now that you've been so holding the fort so nicely. Okay, next up is Babu Dada. He's the hero of Yoda. Everybody knows him. Everybody depends on him. Babu Dada, आपसे शुरू करते हैं. अपने बारे में थोड़ा बताइए. हेलो एवरीवन मेरा नाम बाबू पासुपते है मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ मेरा गांव कराड़ है तो 2007 में मैं मुंबई आया था मेरा एजुकेशन इतना कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा 10वीं तक पढ़ा हूँ मैं उसके बाद फिर मैं मस्जिद बंदर में जॉब करता था एज अ ड्राई फ्रूट की दुकान में
वहाँ से हमारे एक चाचा हैं, उनकी पेट एनिमल एम्बुलेंस है और उस पे जॉब करते करते फिर मैं उनके साथ जुड़ गया। तो मेरे को एनिमल से फिर लगाव हो गया, वो ट्रांसपोर्टेशन करना, गोवा जाना, बैंगलोर जाना एनिमल को लेके। तो ऐसा करते 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 फिर एक बार मेरी पूजा मैडम से मुलाकात हो गई, जो योड़ा के फाउंडर है। तो वहाँ से फिर मैं योड़ा के साथ जुड़ा, तभी योड़ा माहिम में था। ये बात है 2015 की। करेक्ट। तो माहिम से फिर छोटा सा शेल्टर था, लगभग 15-20 डॉग और 15-20 कैट बैठती थी उसमें। उसी में ओटी थी, उसी में स्टोर रूम था, उसी में खाना, किचन वगैरह सब वो यहीं पे ही करते थे। तो तभी से मतलब योड़ा के साथ हूँ। और अभी आज के डेट में योड़ा को इतना बड़ा हुआ देखा है कि मतलब वो एक सपने जैसा लगता है। करेक्ट। और उसके बीच में बहुत सारे रेस्क्यूज और बहुत सारा, मेरा पहला केस जो था योड़ा का, वो मेरे को आज भी याद है। बाबा हॉस्पिटल है बैंड्रा में, वहाँ पे गया था। मैडम ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा केस है, एक कैट को पूंछ को लगा है, उसको जाके पिकअप करना है। तो मैं गया, अभी मेरे को नॉलेज नहीं, मतलब इतना ये नहीं था, अभी ट्रांसपोर्टेशन ही किया था खाली, मैंने हैंडल कभी किया नहीं था। तो मैंने उसको पेट से उठाया, उसने 7 जगह मेरे को काट लिया था। छोड़ दिया। दूसरे दिन घर पे गया, मेरे पापा आई बोली जॉब छोड़ दे भाई, तू जो पहला करता था ड्राइविंग का, खाली ट्रांसपोर्टेशन का, वही कर ले, तेरे से होने वाला वो नहीं। फिर मैं 1-2 दिन वेट किया, फिर मैं गया। फिर मैंने मतलब अंदर से बोला कि अगर मेरे को कुछ अच्छा करना है एनिमल के लिए, तो मेरे को सीखना चाहिए। और जो सीखे हुए लोग थे, उनसे मैंने सीखा कि कैट को कैसे हैंडल करते, डॉग को कैसे हैंडल करते हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रिक बताई कि अगर आपको कोई भी इंजर्ड कैट, इंजर्ड डॉग पकड़ना है, तो उसकी एक ट्रिक होती है। तो उसको नेक पे पकड़ के ऐसा आप प्रॉपर तरीके से बास्केट में, केज में, इसमें रख सकते हैं। तो वो सीखते 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 फिर प्रो बन गए फिर उसमें हम। तो अभी कोई भी कैट, कोई भी डॉग रहे, हम बिंदास जाके कभी भी कैचिंग करते हैं। तो बस दुनिया मतलब एवरीबडी इन द वर्ल्ड प्रेजेस अस फॉर आवर कैचिंग स्किल्स बिकॉज ऑफ द वे। अभी आप बोल रहे थे कि एक पहली बार पकड़ा तो 7 जगह काट लिया। हाँ, आज की तारीख में आप एकदम स्मूथली बिल्ली पकड़ते हो, वैक्सीनेट करते हो। कल का ही बात है। कल हमारी मीटिंग था बैंड्रा में, तो मीटिंग खत्म हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद जहाँ पे एम्बुलेंस पार्क किया था, उसके बाजू में, जस्ट बाजू में, मेरा ऐसा ही ध्यान गया, एक बिल्ली लंगड़ के चल रही है और उसके पीछे के पैर पे पूरा मैगेट ढूंढे पड़ा। तो मेरा सडन ध्यान गया, गाड़ी में बास्केट वगैरह कुछ था नहीं, तो मैं एक दुकानदार के यहाँ से बास्केट लिया, अपना बॉक्स जो, हाँ, तो वो लिया, बोला भाई साहब हमको दे दो, वो कैट को लेके जाने का। सडनली गया, उसको कैच किया, बॉक्स में रखा, गाड़ी में रखा, मलाड शेल्टर पे लेके आया। उसका ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट है वेरी गुड। और उसका पैर वगैरह एम्पेड वगैरह करना है, वो आगे का प्रोसेस है सब। तो ऐसा है। So next up is one of the most shy person but the sweetest person of Yoda. Anushka, you have to talk now. I know you're very shy. Introduce yourself, please. Even I don't know a few bits about you, so please start from the beginning. Got it. I'm Anushka. So again, Meenal और मेरा almost same सा story है. So I did my graduation in German language. Then I worked at corporate, but वहाँ कुछ मज़ा नहीं आ रहा था. Then I used to feed dogs and rescue animals. तो मेरी बस एक डॉग थी, तारा नाम था उसका. I rescued her. उसके बेबीज हुए, सब कुछ हुआ. She was not in great condition. And I really didn't know anything about sterilization, nothing at all. उसके 9 बच्चे थे and we took care of them, like my parents and I. But the babies couldn't make it. And उस डॉग की सर्जरी भी गलत हुई, सब कुछ गलत हुआ because so I'm from Muzaffarnagar. This was in Muzaffarnagar. This was in Muzaffarnagar. And I was working from home, तो कोई और मतलब कुछ connectivity नहीं था. Obviously Delhi is quite far also, but वो उस condition में ही नहीं थी कि वो travel कर पाए. And she became my inspiration, and that's how I got into animal welfare. And then simultaneously Priya ma'am से मेरी बात चल रही थी उस समय, because I was looking for a job into animal welfare क्योंकि मुझे corporate छोड़ना था. And I spoke to her, and वो मतलब तब भी इतनी understanding थी that I mean she allowed me a week, I think a month actually. And because I spoke to her about Tara, that this is the situation with her, and she understood that,
without knowing me. She didn't know anything about Tara or me. And after a month, I joined Yoda, and Meenal was there. This was Then again in Chuem. in Chuan Yeah. village. Okay. Yes. Because we But didn't I have was Malad in- then. Nahin, I was in Khar. She was in Khar. hired for Chuem, but starting when she came to me. हाँ. Then again, पहले साल में we did पूरा shelter management. बाबू दादा साथ में थे. Meenal was there. They all trained me. And ऑपरेशन संभाला पहले. उसके बाद now finally after 3 years I'm into adoptions. Great. I'll come to all of that. Anushka के बारे में एक interesting fact है. Before I joined Yoda, so I've been associated with Priya for a longest time because कुछ भी rescue होता था, कुछ भी होता था. Even मिट्ठू के time also, you know, I got in touch with Priya. I remember every time I dropped a dog in Malad, she was the one to receive, she was the one to release, she was the one to update. So I knew Anushka अगर है तो I can just sleep properly. So again, my next question is open to everybody and it's my favorite topic. I keep fanboying about this person. ये इंसान के बारे में हर कोई इंसान मतलब you know जितनी भी तारीफ करो कम है. But I want to understand from all of you what you think about it. And you ended on Priya, so I want to kind of keep that open. Tell me about Priya because I'm crazy about Priya and the dedication she has for the cause. Right? I have only good things to say. I have only fanboying to do about Priya, but I want to just quickly take a minute from everybody and you know get your perspective. You want to start because you was saying So I think she's the mother of Yoda. yes. So mother to You all of us. Yes, go ahead. And Sorry, did you remember once we Yes. sent her a card? Huh. Yeah, so it was anniversary of Miss Priya and Akarshan. Akarshan. So we made like we legit wrote a letter and we wrote, "You are the mother and father of Yoda." yes. Literally, she is, right? Yeah, And not that just is from the perspective that she's a founder, but from the problem solving perspective, right? She will handle disputes, बच्चे लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, उनके बीच में patch up कराना, and so patient. Despite handling what she does, right? This is not the only thing she does. So yes, I don't want to talk much now. Yes, Dawud, आप बताओ. प्रिया मैडम Yes. प्रिया मैडम का ऐसा है कि प्रिया मैडम को मैं मतलब काफ़ी टाइम से जानता हूँ और प्रिया मैम को फर्स्ट टाइम मैं मिला था उनके बंगले पे, वर्ली पे जो बंगला है ना. तो योड़ा का पहले वो क्या था कि पीने का पानी जो है योड़ा के अंदर शेल्टर पे वो प्रिया मैडम के बंगले से आता था. Wow. तो एम्बुलेंस में 10 कैन 20 लीटर वाला भरने का, वो प्रिया मैडम के बंगले पे जाने का, उधर से पाइप लेके फिल करने का, वो आके खाली करने का. तो तभी प्रिया मैम मुझे मिले थे 2015-16 में. फर्स्ट टाइम उनको देखा था कि एज प्रिया मैम ये योड़ा के फाउंडर है. तो तभी से उनको देखते आ रहा है और एनिमल के प्रति मतलब कभी भी उनको फ़ोन करो या कुछ करो तो कभी मना नहीं करते कि मैम ये एनिमल अपने पास जगह नहीं है तो प्राइवेट में दिखा दो, पर कुछ करो, एक्शन करो, उस पर कुछ लो. कभी मना ही नहीं करते, कुछ नहीं करते. ऐसे ही एक बार अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे 2023 में एज ए मैनेजर बनाया, असिस्टेंट मैनेजर योड़ा का. मैं एक ड्राइवर था पहले योड़ा में, ड्राइवर करके स्टार्ट किया था. उन्होंने खुद से मुझे फ़ोन करके बोला कि बाबा ऐसा है, हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर बनो और अच्छे से सेवा करो एनिमल्स की. तो उसके बाद मेरे मन में ये होता था कि हर एक चीज़ के लिए मैं उनको फ़ोन करता था कि मैम यही करूँ वो करूँ. तो एक बार रात को 12 बजे मारवे में एक्सीडेंट हुआ था मारवे जंक्शन पे. तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन पिकअप किया और मुझे इतना ही बोला कि बाबू अगर तुमको लगता है कि शेल्टर पे जगह है और उसको अपन हैंडल कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो इसके बाद दिन में भी मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट डिसीजन लो और डायरेक्ट कर लो, सॉर्ट आउट. तो ये थिंकिंग है उनकी एनिमल के प्रति. I will second that because जितनी बार भी एडमिशन करना होता है we have to कितनी बार ना हम लोग डिलेमा में होते हैं that you know you have a capacity also ना because if you over admit do we have enough staff to cater to them, do we have enough medicines, do we have enough you know material and resources to cater to them. But I have always seen that if you over admit also Priya makes ends meet, right? So yeah, but again I don't want to keep butting in. Yes, Meenal. Yeah, so she obviously has like a really big compassion towards animals, but I would like to add that she's really compassionate towards humans as well. Yes. Because yes. I have first-hand experienced that. कैसे so I first met her on the first day when I came for a trial. उस दिन she met me as a friend. She didn't meet me like a founder, although I knew that who she is.
and she didn't need to come and say hi to me. She just came, said hi to me, like hugged me sideways. I'm like, wow, who does that, right? She's so grounded, and you get that energy from her, you get that vibe from her. Besides that, I think I started working with Yoda in April 2022, and in 3 months, like things happened, managers shifted, and she had to promote me, and she just like gave me the whole charge of shelter. It was before you, and I was like, the way she trusted me with everything was amazing. Second, just after like 6 months of me joining, there was like a personal issue I was going through, and damn man, she came through. Like even your real friends don't come through like this the way she did. I just went to her with a problem, and I was like crying, and then she was like, Mia, your problem is like nothing. Honestly, this is sorted. I'll do this and like sorted. Enough. Yeah. Now just stop crying and like figure something else out. We are there for you. I mean, she has been so compassionate towards every human being, honestly. She's a compassionate person overall. I Yeah. think Tanya also, you had a similar feedback or rather, observation when we met her the first time. We were wowed the way she greeted us, right? Like such a, I'm sure a lot of people have a preconceived notion about when you go and meet somebody like her, right? Exactly. And when you see such an humble and very down to earth person, you have anything you want to add? Yeah, I mean, so obviously, initially when I heard about her, I didn't know much about her. But then, like, eventually I gathered that, okay, who she is and, what she does. But I would like to say that, she being Priya Agarwal, that personality and the height of her personality and the, stature of her personality, she is too grounded a person. I mean, I have never ever seen, a person like her. I mean, trust me, I mean, she is more than a celebrity, but still, I mean, she's a very simple person. She eats with us, she'll crack those little jokes and she'll laugh with us. That is, and I love the way she And I laughs. love her Okay. humor. Yeah, yeah, Yeah. yeah, Her yeah. one-liners. Yeah, her one-liners, her humor, and I love her laughter. Okay, the way she'll say something and she'll only start laughing, and then we all just Yes. join in. It's beautiful. It's It's the beautiful. vibe, It's yeah. beautiful. And another thing that I would like to say is that so obviously, while I was doing my rescues along with Dheeraj, and we were doing, so that is how we ended up getting in touch with Priya, and in that journey, Dheeraj joined Yoda. And then eventually, so one day I was like, uh, I also want to be a part of Yoda. And I showed my interest to Priya. And Priya spoke to me and she said, why not, Tanya? I mean, I want somebody, trustworthy for Malad. And I want somebody to care for the animals. That's it. That is what I need. I don't want to look at anything else. And I think she did not look at my CV or any other parameter. She just said, Tanya, you are compassionate enough and just be there. That's it. And one thing that I would like to say that I'm sure everybody will agree, and बाबू दादा और मेरी बात हो रही थी एक दिन, एंड मुझे याद है बाबू दादा ने मुझे एक चीज़ कहा था, कि प्रिया मैम बोलते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एनिमल के बारे में सोचो. A lot of people come to us, people fight, feeders. I have faced it. These are my personal experiences. People have come and abused me, threatened me कि तुम्हारा बंद करा दूंगा, तुम्हारा ये करा दूंगा, वो करा दूंगा. But Priya has only one perspective. जो कोई कुछ भी बोले, सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, बट बस उस एनिमल का ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सही होके अपने जगह पे वापस जाना. I want to put a very important point. So before we started the episode, Meenal was doing that energy cleansing thing. I think the energy has come in perfectly fine here because the flow in which this whole thing was going. My next question was going to be about our Yoda's core principle about just putting our head down and doing the work. And if you do that long enough, people will fall in line. And that's what we've been doing, right? So आज की तारीख में अगर देखा जाए तो animal welfare ना बहुत complicated बना दिया लोगों ने. And the one of the podcasts where I went to or wherever I'm talking about the subject, right, I'm saying even if there are haters, there is a milder and a more passionate approach that we can take to educate them. But our animal lovers, so today now let me be blatant, मेरी सबसे ज्यादा लड़ाई एनिमल हेटर्स के साथ नहीं होती है.
दे डोंट लाइक एनिमल्स, दे वॉक आउट. मेरा सबसे ज्यादा एफर्ट जाता है जस्ट टू टेल द एनिमल लवर्स दैट डोंट फाइट अमंगस्ट ईच अदर. कोई कुछ काम करता है, यस गो अहेड. We were just talking about this कि है ना योडा में मैनेजर्स हमारा मैन पावर सबसे ज्यादा इसमें जाता है कि लोगों लोगों को लड़ाई झगड़ा करना. We need to be more united, more compassionate towards each other. अगर योडा कुछ कर रहा है या कोई और एनजीओ कुछ कर रहा है, it's okay to be vigilant. ठीक है, if you are a feeder, if you are a rescuer, अगर आप भी एनिमल पैशनेट इंसान हो, it's okay to be vigilant कि वो शेल्टर बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बट एक वेंडेटा लेके बैठना हर बार कि नहीं ये लोग नेग्लिजेंस दिखाते हैं, that's why I'm like always proving my mettle to people, and Priya keeps telling me no, it's okay. Keep your mouth shut, because more you make noise about it, more controversies you'll have, and then you get so distracted that आपके पास welfare के लिए टाइम नहीं है. हाँ, actually, that's true. So you know, I initially मेरे को लगता था यार why is Priya not saying this, but then if you do it long enough, people realize अरे भाई योड़ा से अच्छा तो कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है. But yeah, anything you want to add? XYZ एक फीडर है मालवनी में अभी रिसेंटली, तो उनके हमने बहुत सारे स्टरलाइजेशन गए हैं, बहुत सारे डॉग किए हैं, कैट किए हैं. I like the name XYZ. हाँ, तो अभी रिसेंटली कुछ हुआ कि उनका एक कैट छोड़ने में डिले हो गया, गाड़ी कहीं बिजी थी, एक गाड़ी गैरेज में गई थी, तो डिले हो गया, तो सडनली गुस्सा हो गए. गुस्सा मतलब ऐसा पूरा गाली गलौज पे आया, सब हुआ. तो पिछले जो काम किए थे हमने, उनकी 50 कैट डॉग्स किए रहेंगे, वो सब भूल गए. वो खाली एक कैट की वजह से हमारा उनका रिलेशन खराब हो गया. क्या था, क्योंकि एक दिन डिले जाने वाली थी कैट, क्योंकि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था, पर्सनल नहीं था अवेलेबल हमारे पास, तो उनको क्लियरली बोला था. तो बोलते नहीं आज क्यों नहीं छोड़ा. मतलब ये कोई बात नहीं है, अगर डिले हो रहा है तो उसका रीज़न भी हम दे रहे हैं ना आपको, कि ये रीज़न है, इसकी वजह से डिले हो रहा है, या तो आप खुद आके पिकअप कर लो यहाँ से, और जहाँ पे छोड़ेंगे आपका वीडियो बना के हमको भेज दो, बात खत्म. In नहीं, नहीं, context, नहीं. Yoda does free sterilization for street animals. फ्री, चार्ज भी नहीं कोई चार्ज नहीं. मैं एक ना बात एम्बुलेंस का बोलना चार्ज. चाहूंगी इधर, सॉरी, आपकी बात को सपोर्ट करके, कि जब आप 100 चीजें अच्छा करो ना, तो हाँ ठीक है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, सबको पता होता है, बट जैसे ही एक छोटी सी गलती हो जाती है ना, वो 100 चीजें सब भूल जाते हैं. एंड आई नहीं, थिंक गलती तो आई वुड नॉट ऑल्सो अलाउ, बट गलती है भी नहीं ना, तो भी बस एक गलती या वेंडेटा कोई मिस हुआ या कुछ हाँ. भी कभी हो सकता है कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी या कुछ मैन पावर की वजह से वो नहीं छोड़ पाए, तो वो ठीक है, चलो, मतलब सामने वाला एकदम से भूल जाता है कि अरे यार, मतलब, तो आई थिंक इस वजह से भी ना मुझे लगता है कि हम अपना काम करते रहे, वही बड़ी बात है. इंटरेस्टिंग बात यही है, उसके बाद उनके ही एरिया से हमने 10 बिल्लियां उठा के स्टरलाइज करके छोड़ भी दी. हम वो ईगो लेके नहीं बैठे करेक्ट, हाँ, हमें वही, वही. welfare कि करना. हमको हाँ, करना है एनिमल की हाँ, हेल्प, हाँ. हमको उनको नहीं देखना है. उन्होंने उनका काम किया, हमको जो बोलना था बोला, हमने एक कान से लिया, एक कान से छोड़ दिया. बाकी जो हमारा काम करना था वो हम आगे करते ही रहेंगे. वो यहाँ पे मैं एक छोटा सा हाँ. एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. उस दिन बाबू दादा नहीं थे, मीनल भी नहीं थी, और अनुष्का, धीरज, कोई नहीं था, मैं अकेली थी. तो बेसिकली क्या हुआ कि एक लेडी आई थी, आई थिंक अपने डॉग को वैक्सीनेशन लेके, तो मैं ओटी में थी कुछ काम से, तो मैं सडनली आई, तो मैंने देखा वो लेडी एडमिन और सिक्योरिटी के साथ उनका कुछ लड़ाई चल रहा था, बहुत लाइक आर्ग्यूमेंट. तो मैंने आके एडमिन को पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला देखिए ना मैडम, ये ना सीक्वेंस के हिसाब से वो वेट नहीं करेंगी, वो सीधा अंदर जा रही है धक्का मार के दरवाजा. तो फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप नाम लिखा दीजिए. नहीं, मुझे डॉक्टर ने डायरेक्टली अंदर जाने के लिए बोला. तो मैंने बोला ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, आप नाम लिखा दीजिए और वेट कीजिए, मैं बराबर. बात करके आती हूँ. मैं अंदर गई, तो मैंने डॉक्टर से बात किया, तो डॉक्टर ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बट उन्होंने मुझे पूछा कि ये कौन है लेडी. तो मैंने बोला कि है, वो बाहर ही रुकी. उतने में किसी ने दरवाजा खोला बाहर जाने के लिए, तो वो लेडी दिख गई और वो एकदम से अंदर आ गई आके. तो मैंने डॉक्टर को बोला कि यही है. तो फिर मैं ये हुआ, तो मैंने डॉक्टर को घूम के मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर प्लीज आप ना सबके साथ एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर देना कि हम एज पर सीक्वेंस ही लेंगे, बराबर. बीच से लेंगे तो जो बाकी वेट कर रहे हैं लंबा टाइम, उनके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है ना. तो ये लेडीज अचानक से मुझ पे चिल्लाने लगी, एकदम गाली गलौज, चिल्लम चिल्ली, ये वो. बट आप ठीक है, उस मोमेंट में मैंने उनको बोला कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, एंड मैं अपने डॉक्टर से बात कर रही हूँ. जो भी कुछ हुआ बाबू दादा, मैं चाहती तो उस मोमेंट पे उसको बोल सकती थी कि आप अभी के अभी प्लीज बाहर चले जाइए, आप कहीं और करा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, एज पर सीक्वेंस ही करते हैं. बट मैंने एक चीज देखा कि उनके हस्बैंड ना वो डॉगी लेके खड़े थे, वो हस्बैंड भी तब तक अंदर आ चुके थे, मुझ पे चिल्ला रहे थे
मैंने डॉक्टर राजवी को बोला कि आप प्लीज कर दीजिए वैक्सीनेशन जो भी है, क्योंकि वो डॉगी इतना घबरा गया था इस पूरे माहौल से। उस मोमेंट में मैंने सोचा कि मेरे लिए वो बच्चा इम्पोर्टेंट है, बराबर Yeah. उसका वैक्सीनेशन हो जाए, वो घर पहुंच जाए तो उसको शांति होगी। इसीलिए ठीक है यार, उसने मेरे को 2 गाली दे दी, 4 बातें सुना दी, क्या ही होगा? मतलब हाँ, एक आंसर वही सुनने वही का एक आंसर निकाल हाँ, आ जाने का। मेरा जो मेन मोटिव है, वो बच्चे का तो वैक्सीनेशन हो गया, वो अच्छे से घर पहुंच गया। बस That's why that favorite line of Priya's, we continue to be the no nonsense NGO. हाँ, हम लोग सिर्फ अपना काम करेंगे और जिसको जो बोलना है बोलने दो. Eventually people realize and now we, अभी तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग ना हमारे फेवर में बोलने लगे हैं. Like if you put a comment on a social media, we don't have to reply. Our audience's own reply, they only say कि how dare you say something like that. इनफैक्ट जब ये हुआ ना, उस टाइम पे मेरे लिए ना लोग आके लड़ने लगे Correct, उस same. लेडी के साथ। Correct. वही। मतलब आई थिंक दैट वाज द मोस्ट, मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब लोग आके, आंटियां हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, वही लड़ने लगे। तो मैंने बोला यार ठीक है, फिर तो Great. And we did speak about Priya, but not taking away the work of all the founders. So, thoda fatafat se na, we'll talk about Pooja, we'll talk about Akash. Akash also a man who we almost miss in our conversations. He is also equally important because of the kind of support he provides to Priya, the support he provides to Yoda, and also Meenal Rajda, our very funny, cute founder who everybody gels with. So yes, anything you want to talk about our other Akash, founders? I feel he's the invisible warrior. He takes care of all the things that And you know, he's the math- number guy. He's yeah. the mathematically very strong, Mathematically very strong. financially very strong. So yes, because you guys have been there for long enough. बाकी founders के बारे में बताओ थोड़ा. से तो इतना बातचीत नहीं होता है बट कभी कभार मिलते हैं तो फुल एनर्जी के साथ एकदम और उनकी योडा पार्टी का डांस हाँ, सबसे हाँ, फेवरेट है. हाँ, वो वाला iconic वो है। हर साल हर एक बार आते हैं और हाँ, एक बार में और पूरी ही पार्टी- पूरी पार्टी, पूरे हाँ। साल की My एनर्जी first देके party with जाते हैं। Yoda, Yes. इतना डल चल रहा था. सब अपना ग्लास लेके आपस में बात हाँ। कर रहे हैं. He entered the room and it was like buzzing, और right? एकदम से शंकर Everybody के साथ came on the एकदम- dance floor. Yeah. मैंने ड्रिंक करना बंद कर दिया था मतलब अभी बंद ही है तो अरे बाबू किधर है मैं उधर बैठा था कोने में ओडका का बॉटल लेके आया वो हमारे साथ वही है। बोला, सर मैंने बंद कर दिया मैं नहीं पीता हूँ अभी सब ये सब तो मैंने एक तो लेना ही पड़ेगा तो सीधा मुंह खोला सीधा अंदर What do you have to say about Meenal, Pooja, please? We have, I mean, with Meenal, I have had enough interaction with Pooja also, but Tanya hasn't met Meenal yet. Meenal, I haven't met her, but I've spoken to her once or twice. But you guys will have more stories on But the founders. so I'll just quickly tell you, Meenal, again, she's a very sweet lady. She just tells me कि हाँ ठीक है कर ले जो भी है, मतलब she doesn't have too many कि क्या क्यों, कर लो तुम अपने हिसाब से, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे. And पूजा तो obviously, I think पूजा, she's a taskmaster. मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा है, पूजा हो जाएगा। बात खत्म. मतलब I I'll tell think you, when I वही- reach out to वही- Pooja, there are problems that I can solve, right? Hmm. There are problems that everybody reaches out to me for, कि ये कर लेगा धीरज. There are problems that I can't solve. And that's when I call Pooja. कि पूजा ये मेरे पे ग्रेड के बाहर है, प्लीज कॉल आउट. BMC में कुछ बात करनी है या कुछ परमिशन चाहिए. I call Pooja and she gets it done. वो हमारी सेफ्टी गियर है. Yeah. मतलब शी इज लाइक आवर वो हाँ. पूरा शील्ड है. और पूजा के सामने अगर मैं किसी हूँ. ने मैनेज उसको कुछ बोल दिया, पूजा अपने बाल फोल्ड करती है, Yeah. कॉलर उठाती है. I've seen that so many Yeah. times, honestly. Yeah. अभी recently है ना shelter पे मलाड में जब construction चल रहा था ना, something happened. That guy was just like fussing over something, and she got so mad. She did the same thing, tied her hair. उन्होंने उसको ऐसे कॉलर से पकड़ा and she threw him out. And I was like, और ये देखने लायक था. मीनल कुछ तो करो ना, कुछ तो करो. पूजा उनके सामने कुछ बोलेगी. I've heard that taco story also. वहाँ पे आ गए थे गांव वाले yeah. when we started the Yes. taco shelter, animal shelter. वहाँ के पंचायत वाले आ गए थे कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो. And वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे हेयर टाई किया, shoulders ऊपर किए. Like she's the manpower. So Meenal Rajda के साथ I've had like few interactions. Like interactions have always been good, but ना मेरा और मीनल मैम का हमेशा ये से रहा है क्योंकि people come to the shelter, मीनल ने भेजा है. Now the confusion कौन is सी मीनल हाँ, कौन सी मीनल? मीनल It is so funny, and so then I have to call her only. Like I have had like multiple interactions with her, Yeah. and she's very sweet, Yeah. very understanding. Like if there's something that I need to talk to her, I can just like call her up. She's there. And Akash sir is like the funny one, of course. बहुत स्पीड में बात करते हैं
हाँ, हाँ Meenal हाँ। ma'am, हाँ, but हाँ. Meenal is She very quick She's very अच्छा quick. Yeah, okay yeah, चलिए ये हो गया हाँ. ये हो गया ये हो गया हाँ ये हो गया इधर she जाना doesn't have that much like but so because time. of again she also comes from a corporate background Yes, no? yeah. she's Yes. so unka I've seen I can relate to her so much that she's got a to-do list in front of her so it's very easy to Exactly. communicate acha so this is how she calls me bro listen now this is what I need one this okay ठीक है and checklist done then point number 2 point number 3 okay done bye there's no how are you nothing but then that's how our conversations are and sometimes when we sit down or when we talk we talk any nonsense my next subject is quickly adoptions. I am sorry to put you on spot, Anushka. This is something that because we are talking about Meenal Rajda, who used to manage adoptions before you. Let's start about adoptions. Let's talk as much as you want to talk about adoptions. She still helps us out with adoptions. Yes, Like, the I mean, yeah, but talk about adoptions at Yoda. Let people know about how we do adoptions. Anything you want to say? so first of all, I would really like it's an appeal. We have more than 27 animals right now at the shelter who are struggling to find homes. Again, we have indie puppies, so they are looking for homes. It's an appeal, so people should. Just come forward. Yeah. I want to take this clip out and then push it to as many people as we can. We have 27 puppies dumped outside Malad shelter in last 2 months. We've posted several videos on Yoda. We've seen that people just come here and dump puppies because they think यहीं पे सबसे अच्छा ख्याल मिलता है. नहीं, shelter is not the ideal place for an animal. A puppy can catch any sort of infection because they're not vaccinated, they don't have immunity. It's such a big risk. I just want people to come forward and adopt as many indies as you can and just spread the word so that these babies find home. I don't think their childhood should be spent at a shelter. Yes, but while we talk about that, why don't you tell me, just tell me the entire journey, right? So from start to end, adoption में क्या क्या होता है? So basically, I'm into screening families. I get leads, then I screen them. There's this questionnaire that I have made where people can, figure out. I'm asking you this because a lot of people question me or ask me, are you sure now he's going to the right family? जो भी होता है ना, तो ठीक है, it's okay to be concerned, but why don't you tell me the questions we look at? So basically, people should be able to financially insure the animal. And again, financial ke alawa bhi, there are a lot of factors. They should be able to give time to the animal because puppies, at least till 6 months, they need that time from their pet parents. And be it a puppy, be it a adult animal, because it's been a while, the animal stays at the shelter. The shelter environment is quite different from that of home environment. So, I mean, the time should be there, the proper time should be there. Then, medically, financially, they should be able to insure the dog. And again, they should be loving towards the animal. Absolutely. और वो हमें देख के समझ में आता है. Yes. I remember one case where Anushka got a lead. That fellow was, I think, college में था, 20-21 साल का. That light eye guy. So, Oh, yes. हाँ, so he came to the shelter. Anushka wasn't there. I was there. Anushka called me saying कि आप इसको देख लोगे क्या? आ रहा है adopt करने के लिए. So, and she wasn't sure because it was the first time adoption. He had interest. So we also Yeah. open to give it to people who want to try and do. But we have a very stronger check when people are the first timers. So he came to the shelter and then he held the puppy like this. तो मैंने अनुष्का को फोन किया, इसको देना मत. Like it's okay to not be exposed to animal welfare or like animals in the beginning and then change your mind. But if you come and hold a puppy like a garbage bag, then I'm not giving that puppy to you, right? तो मैंने उसको बोल दिया and then अनुष्का like हाँ मेरे को भी नहीं लग रहा था सही है नहीं देते हैं इसको. So that's how particular we are about where they go, right? You guys want to add anything on the adoption अडॉप्शन का अपन मिली का हुआ था वो मिली एकदम सही हो मिली का story बताओ, Oh, please. beautiful. मिली Starting से बताओ, बताओ please मिली बताइए. का. मिली का स्टोरी ऐसा था कि मैं बैंड्रा से आ रहा था. अगेन बैंड्रा आ गया. फिर मैं बैंड्रा से आ रहा था. जैसे ही बैंड्रा से मलाड के लिए नीचे उतरते हाईवे छोड़ के, तो वहाँ पे रुक गया चाय पीने के लिए. तो चाय पीते पीते मुझे एक लड़का आके बोला कि आपका ये एनिमल का एम्बुलेंस है ना? बोला हाँ. तो बोला क्या हुआ? तो वहाँ पे एक टंकी पे ना एक मदर है और उसके बच्चे हैं काफ़ी. तो वीक है बहुत, ज़रा आप देख लो ना. तो मैं गया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी. मतलब एकदम दुबली पतली थी और उसके 9 बच्चे थे. एक उधर ऑफ हुआ था पहले से, मैं जाने के पहले ही, और 8 बच्चे ज़िंदा थे वहाँ पे. तो वही सडनली अगेन मैंने प्रिया मैडम को फ़ोन किया कि मैम ऐसा है. तो इनको मैं शेल्टर पे लेके जा रहा हूँ. आगे मतलब थोड़ा हेल्दी करके ये करके बड़ा करके इधर ही ला के छोड़ देंगे उनको. तो ऐसा सब हुआ.
फिर उनको एम्बुलेंस में वगैरह सब भर के लाया, शेल्टर पे रखा, तो फिर अच्छे खासे बड़े हो गए। अनफॉर्चुनेटली वो उसमें से मेरे ख्याल से 5 बच्चे कुछ ऑफ हो गए, हम्म 3 बच्चे बचे। वो एकदम हेल्दी थे, एकदम अच्छे थे। अनुष्का जी ने उनका अडॉप्शन करवा दिया दिल्ली में। मैं खुद उनको दिल्ली छोड़ने गया था एम्बुलेंस लेके, और और उनको जो फार्म मिला है, हाँ 1 नंबर फार्म मिला है। एकदम खुला स्पेस है, बड़ा बढ़िया स्पेस है, पूरी जिंदगी उधर से आराम से निकल जाएगी उसकी। और उनके ओनर जो भी हैं वो भी बहुत हम्म। बड़े एनिमल लवर हैं। और उनके पास पहले से 2 थे, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ वो बट इट वाज सच एन इमोशनल थिंग नो व्हेन ही वाज गोइंग, वो उनके Yes. साथ जा रहे थे, ही गॉट इमोशनल क्योंकि वो गाड़ी में उनके साथ थे रास्ते पर, देयर वाज अ कनेक्ट। मेरे को जब भी छोड़ने का टाइम था ना, वो गेट पे गया था, मैं हॉर्न किया गेट खोलने के लिए, मेरे आंख में आंसू थे कि उसको मतलब वो सिचुएशन में देखा है, और वहां से फिर मैं अभी उनको हम्म छोड़ने वाला हूँ। तो हम्म मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि भाई छोड़ो उनको। I can But- understand. I mean, this can get like really overwhelming. Hmm. When I started working over here, एक डॉग आया था, पिटबुल था. Everyone was scared of him. Everyone at the shelter, क्योंकि वो था थोड़ा ऐसा aggressive, but somehow he connected with me, Frodo, and yeah, and he used to listen to me and everything, and I like just fell in love with him. But I knew for a fact that I cannot take him home. Right. So when he got adopted and when he was going, it was so difficult for me. It was so heartbreaking, honestly. But at the same moment, you know that उसको एक अच्छी जगह मिल रही है. But वो इतना conflict of emotions होता है ना, to handle that at that moment, it's very difficult. Very But I difficult. think मेरे को लगता है जहाँ तक I have seen it, it's not the going that is making you emotional. It's when you see two different, drastic contrasting pictures. One is, so I'll give you a context here. We built this puppy area, right, in our Malad shelter, because मेरे को लगा था यार अभी जिस तरह से puppy रखते हैं हम लोग, after a point ना puppies should not be in the cage and we can't let them out be in the open also. So I created this zone in Malad where they can just move around थोड़ा सा, but they are still separate from the old dogs, right? तो जब मैं वहाँ घुसता हूँ ना, कभी कभी मेरे को लगता है कि क्यों बनाया मैंने वो, क्योंकि द वे दे लुक एट यू, राइट, व्हेन यू ऑल द पपीज दे जस्ट फॉलो यू फ्रॉम द केज, फ्रॉम दैट पपी पेन एरिया, एंड देन व्हेन यू लुक एट दैट साइड एंड व्हेन दे गो टू द परमानेंट होम, वो जो दो कॉन्ट्रास्ट इमेज है ना, दैट मेक्स यू लाइक थैंक गॉड दिस गाय फाउंड होम. एंड एट द सेम टाइम दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू मी, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन रिलेट. उसके जो पीछे सिबलिंग रह जाते हैं ना, वो भी याद आते हैं, जो एक इट इज गुड फॉर हिम बट नॉट द अदर्स. एंड दैट्स व्हेयर आई लाइक गोइंग बैक टू योर अपील. यार हमारे पास जर्मन शेफर्ड्स आते हैं, हमारे पास लैब्स आते हैं, हमारे पास रिट्रीवर्स आते हैं, दे गेट अडॉप्टेड सो क्विकली. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए, बट इंडीज को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मतलब व्हाई आर पीपल नॉट ब्रिंगिंग होम इन Again, देवी? Indies plus nobody wants sick animals. So Rocky is one of the examples. मतलब And he's कितने not समय sick. से There are yes, थोड़ा attention चाहिए उसको, but so he that's can, it. and he can get better also. Shelter में कैसे ठीक होगा वो? Yes, and he's so friendly. So same goes with Izzy. So there's a reason why I relate with timid dogs because I am one of them. You will love Pari, my dog. I want to say something over here. I feel that because ये चीज़ ना बहुत क्यों adoptions नहीं होते हैं, बिकॉज जो एक्चुअली वर्ड आउट कर सकते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो जिस दिन ये मानना शुरू करेंगे ना, हम बहुत लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं, ठीक है, उन जिस दिन वो शुरू करेंगे ना, उस दिन सब करेंगे, क्योंकि क्या है ना, हम भीड़ का हिस्सा होना हमको बहुत अच्छा लगता है. जो एक बंदे ने किया वही, बट वही तो प्रॉब्लम है ना कि जो एक्चुअली में जिनको फॉलो किया जाता है, वो सब ब्रीड्स खरीदते हैं. उनके लिए ये छोटे मतलब इंडीज कोई मैटर नहीं करता. हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज आजकल है जो बहुत ज्यादा आजकल इंडीज में आ गए. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ब्रीड्स बुरे हैं, अल्टीमेटली डॉग्स ही हैं, कैट्स ही हैं, एनिमल्स ही हैं, बट क्या होता है ना, ब्रीड्स इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या है ना, वो डिमांड सप्लाई का मैटर आ जाता है. वहाँ पे जहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई होगी, कल फिर शिवानी वो भी तो वही बोल रही ब्रीडिंग, थी. हाँ ब्रीडिंग भी आ जाता है, फिर वो भी एक अलग ये टॉपिक हो जाता है जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे क्रूएल्टी भी आ जाती है, और उसी से कनेक्ट होके फिर ये बच्चे अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं. तो मतलब वो बहुत अजीब सा चीज होता है. Fair point, yes. There's
always this as well. This weather is not good for like big hairy Hmm. dogs. This Yes. weather is not good for German Shepherd. आप husky लेके इतनी गर्मी में घूम रहे हो, आप उसको अच्छा नहीं दे रहे हो, आप उसको अच्छा और क्यों नहीं कर रहे हो? environment What दे is रहे हो. it? This is not Yeah, fair. you एक तो उनको ब्रीड करवाया गया because you wanted to buy a जबरदस्ती, dog. हाँ, You want to buy a correctly. dog. एंड ऐसा भी नहीं है कि वो वहीं के एटमोसफियर में ब्रीड हुआ है, नेचुरली ब्रीड हुआ है, वो उसको पैदा किया गया था आपके लिए, आपकी विम्स एंड फैंसीज के लिए, एंड Exactly. नाउ यू आर गेटिंग देम होम जस्ट टू शो ऑफ. एंड सो आई एग्री विथ यू, देयर आर चेंजेस, लाइक भूमि पेडनेकर adopted from us, Yes. she's got indies, Yes. Madhuri Dixit has indies, so there is a change, but I There's a think the change needs to be more aggressive now because यार एक तो Yeah, that's true. I was, I don't know if you guys watched that podcast. I was giving a math. 150 करोड़ लोग हैं देश में, 15 करोड़ स्ट्रीट एनिमल्स हैं. आप अगर 10 में से एक इंसान एक अगर जगह पे- अडॉप्ट कर ले, सारे स्ट्रीट एनिमल्स गायब हो जाएंगे, घर पे आ मुझे जाएंगे. मुझे रोज ये थॉट आता है, मुझे रोज ये थॉट आता है कि चलो अडॉप्ट भी नहीं करूं. आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ. ठीक है, नहीं, बहुत बार नहीं हो पाता कि आप घर में लेके आ पाओ, बट क्या हम्म. है ना, मुझे ये लगता है कि अगर हर इंसान जो भी रोड पे चल रहा हो, इस दुनिया में हर इंसान एक कोई पपी या डॉगी को खाना देना शुरू करे, थोड़ा प्यार दे, थोड़ा उसको कहीं बैठने का जगह दे दे, तो इस दुनिया में ना कोई भी एनिमल मतलब सफर नहीं सफर करेगा. नहीं करेगा. कोई भी थोड़ा सा सोचे कि ओके, थोड़ा इसको स्टेरिलाइज करवा दो, ट्रीटमेंट करवा दो, हम्म. बस उतना ही है यार. हर जगह पॉसिबल नहीं है कि ठीक है. अभी बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं हमारे यहाँ योडा में ही बहुत आंटियाँ आती हैं जो खुद को सर्वाइव, मतलब अपने सस्टेनेंस के लिए वो लोग दे वर्क एज मेड्स, बट फिर भी मतलब मैं कूडोज टू देम कि वो This has been my इतना करते ना. मैं सच में बाबू दादा, मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ आंटियां आती है, इतने कैट्स इनका लेके, तो शगुफ्ता चलने- आंटी, चलने का ताकत शगुफ्ता नहीं रहता है आंटी, उनके अंदर, हाँ, चलने का आंटी, ताकत नहीं उषा रहता है आंटी, फिर भी. उषा आंटी. इमेजिन. वो पामकोट में से कौन सी आंटी थी? दमन दमन आंटी, आंटी. वो दमन कितनी आंटी, ओल्ड है. हाँ. हाँ, शी इज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, बट आई एम जस्ट टेलिंग But यू. look at the age and the what she Age, does. Yes. सुधा आंटी, सुधा सुधा आंटी, मंगला आंटी अपनी. हाँ, मंगला आंटी, मतलब वो तो उठा के लाती है उधर 7 नंबर से. So there's this auntie, Usha auntie, she used to come to Khar. वो इतनी old lady है, and she is like not from a well-to-do family. She used to get like 5, 6 cats. There have been times where she has fainted in the shelter, where we have fed her कि आंटी आप पहले बैठो, खाना खाओ, खाना खाओ. कि आप AC में बैठो, आपके बच्चों का हम ध्यान रखेंगे. Then we send a boy to drop her off. हाँ. Yeah, but she never stops, never. But that's what I'm saying. That's what drawn me to Yoda. मैं जब पहली बार योडा गया था, खार गया था, I saw there was crowd outside OPD, but the way your boys were feeding tea, chai, coffee to people there, मतलब it's a very compassionate, family-like approach. We don't look at कि हमारा काम नहीं है, and everybody does everything at Yoda. We don't look at our designations and we act, right? अगर कुछ गंदा है तो मैं भी हाथ में sleeves ऊपर करके लग जाऊंगा, and you guys also will not think a second to even do a job that is not meant for you, because again the core of it is animal compassion. एंड एक्चुअली तान्या इज राइट. अगर कोई भी सड़क पे, मतलब कोई एक शॉप वाले लोग भी मतलब उनका ध्यान रख लें, बिकॉज दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी. एक चाहिए जो रखे और बाकी चीज जो रखने दे दूसरे. दे, हाँ. That's supposed to be their safe space. Roads are supposed to be their safe space. So And also here let's talk about थोड़ा बहुत awareness for people. यार तुम लोग को लगता है खाना नहीं खिलाओगे तो the popular argument is कि खाना खिलाओगे तो और आएंगे, बट अगर खाना नहीं खिलाओगे तो अग्रेसिव हो जाएंगे, Correct. और खाना खिलाने की वजह से और नहीं आ रहे हैं, वो एरिया में जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं. स्टरलाइज कराओ तो ताकि और आबादी कंट्रोल हो जाए. And talking about sterilization, I think we'll let Babu Dada also talk about sterilization. स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा. स्टरलाइजेशन का ये है कि अभी पिछले 2 साल में लगभग 5,000 के समथिंग हमने कैट किए हैं मलाड में. हाँ, हम्म. और 2,000 के ऊपर डॉग किए हैं. हम्म. फिर भी लोगों की कंप्लेंट है, स्टरलाइज नहीं हो रहा, स्टरलाइज नहीं हो रहा, स्टरलाइज नहीं हो रहा है. आके चिल्ला रहे, फ़ोन कर रहे, मतलब पागल हुए पूरे इसके. दिन रात को 2-2 बजे फ़ोन आता है मेरे को कि पर्सनल नंबर पे आजकल मुझे आप- भी आते हैं. कल ही बाबू दादा को मैंने एक हाँ. message किया उन्होंने. लिस्ट तो लंबी है. लंबी. उधर से ही स्टार्ट करते हैं. इन्होंने जो मुझे भेजा ना, वो लेडी है मर्जेट्टी साइड की. हम्म. तो वहाँ पे पूरा जो 50-60 डॉग है एक साथ, हम्म. ऐसा झुंड में चलते हो, और जैसे एम्बुलेंस देखा ना, सीधा समंदर के अंदर जाते हैं. पानी के अंदर है, नॉर्मल नहीं, पानी के अंदर, और सब एग्रेशन वाले. फिर भी उसमें से कोशिश कर करके हमने 20-25 डॉग किए हैं,
पूरा दिन उधर निकाला है, 5-5 कैचर लेके, नेट लेके, सब करके वहाँ से कैचिंग किया। और वो डॉग लेते आते समय गाड़ी में एक बार ऐसा हुआ कि एक डॉग ने अपना सर काँच पे मार के काँच पूरा फोड़ दिया। उसका पूरा सर फटा हाँ, था। क्योंकि डालने के बाद वो कूदने की कोशिश करता हाँ। था। हाँ, हमारा टेम्पो हाँ। जो कि काँच एकदम मजबूत था उसका, सूरज फिर भी से- उसने फोड़ के भाग गया और एक दूसरा डॉग भी भाग गया। तो 8 डॉग हमने कर लिए वहाँ के स्टरलाइज। और जो भाग गए थे उनका भी हमने मतलब बाद में जाके देखा था, बट वो मिला नहीं था क्योंकि वो जंगल एरिया पूरा था। और वो बाद में जाके 2 महीने के बाद हमको दिखा वही लोकेलिटी पे, और वुंड उनका उसका पूरा प्रॉपर हील था वो सब हुआ। तो वहाँ पे अभी भी हम जाते तो हमको वही मतलब फेस करना पड़ता है कि हमारे गाड़ी का स्मेल आते ही ना सब डॉग भाग जाते हैं। और वो लेडी फ़ोन करके हमको बोलती है कि स्टरलाइज़ क्यों नहीं हो रहा है? बीएमसी वाले उधर गए थे 5-6 बार। बीएमसी की गाड़ी आती है, सेम चीज़, गाड़ी का स्मेल आता है, डॉग भाग जाते हैं। और वो जो खाना देते वहाँ के फीडर, उनको भी हाथ लगाने नहीं दें। खाना देने का, दूर जाने का, तब आके वो खाना खाएँगे वो। So वैसे that has been a challenging ऐसे सिचुएशन में कैसे कैचिंग करेंगे? ये बाबूदादा ने मुझे बताया था, हम लोग एक दिन बात कर रहे थे इस बारे में। बाकी जो मड का मड आइलैंड पे। इजीली मतलब मड का पूरा जो रास्ता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। दाना पानी बीच है ना, पूरा क्लीन किया था हमने, पूरा मारवे बीच पूरा क्लीन क्लीन करो, ऊपर से दूसरे एरिया से लोग आके यहाँ आके छोड़ जाते डंप कर छोड़ जाते जाते हैं। हैं, हाँ, मेरे घर मैं मारवे में ही रहता हूँ। एवरी 2 डेज नया एक डॉग दिखता है मुझे। बाकी एरिया से लोग रिलोकेट वो करते हर रिलोकेट जगह करते health हैं problem है। और उधर खाना पीना मिल जाता है, कुछ मच्छी वगैरह वो सब, तो वो खा के जिंदा रहते हैं। आप एक ऑडियंस को ये बताओ आपका हमारा पूरा स्टरलाइजेशन प्रोसेस। स्टरलाइजेशन का पहले तो हमने एक मैप बनाया, जो कि हमारे पास मैप है। वो मैप के हिसाब से हम चलते हैं, जहाँ से मड जट्टी से स्टार्ट करके योडा तक आता है। योडा है मालवनी चर्च के वहाँ पे। तो वो एरिया हमको पहले कवर करना है पूरा। वो एरिया कवर करने के बाद फिर हमको नीचे मालवनी की तरफ जाना है, जो कि मालवनी 1 नंबर आया, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, महाड़ा आया, वो आया। वैसे करते करते पूरा वो क्लियर हो गया। फिर जन कल्याण जाना है। जन कल्याण करते 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 स्टेशन तक आना है। फिर ईस्ट का करना है। ईस्ट का करते मलाड पूरा क्लियर हो गया, फिर कांदिवली, बोरीवली, ऐसा स्टेप बाय स्टेप करना है। बट लोग क्या करते हैं, हमारा लो, हमारा लो, हमारा लो, बीच बीच में अभी और वो क्या होता है, अगर आप अलग अलग एरिया के करोगे, एक भी फीमेल एक गली में छूट गई, बस हो गया काम। फिर हाँ। 6 महीने बाद वापस। तो अगर एरिया वाइज नहीं जाओगे और हर जगह से सब कुछ करोगे तो कितना भी कर लो कम नहीं होगा। नहीं होगा। आप तो कैचिंग करने के बाद क्या करते हैं? मतलब कैच कैचिंग कर लिया है। कैचिंग किया तो हमारा शेल्टर पे आते पहले तो डॉक्टर प्रॉपर चेक करते हैं डॉग को हेल्थ वाइज, कि कोई डिस्टर्बर का सिम्टम्स नहीं है क्या, कुछ नहीं है क्या। फिर दूसरे दिन उनका सुबह सुबह ब्लड टेस्ट होता है। उस दिन ब्लड टेस्ट नहीं करते क्योंकि वो ट्रेस में रहते हैं। हाँ, तो एक दिन का रेस्ट देते हैं उनको, खाना पानी दे के। दूसरे दिन उनका ब्लड टेस्ट लेते हैं। ब्लड रिपोर्ट अगर अच्छा आया तो सर्जरी करेंगे, उसी दिन सर्जरी होता है। फिर अगर नहीं आया तो 7 डेज़ का हमारा ट्रीटमेंट होता है। वो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से एक बार ब्लड टेस्ट रन करेंगे, उसमें ओके आता ही है। फिर वो ओके आने के बाद सर्जरी करके जहाँ से पिकअप किया है वहीं पे हम जाके रिलीज़ करके वीडियो प्रॉपर बनाते हैं, और वो वीडियो हमारे पास सबमिट रहती है, पिकअप के भी और कैचिंग के भी। और हमारा क्लीनिंग का भी बता दो थोड़ा सा। क्लीनिंग का हमारा ये रहता है कि स्टरलाइजेशन जैसे ही लॉट गया, एक लॉट 25 डॉग का एक लॉट था, उसमें से 20 डॉग रिलीज हो गए। तो 5 डॉग हम दूसरे केज में शिफ्ट करते हैं, जो कि बाहर हमारा ओपन स्पेस है वहाँ पे। और वो ये जो डॉग रूम है वहाँ पे हमारा फ्यूमिकेशन मशीन लगता है, जिसके अंदर पूरे सब केमिकल वगैरह लगा के हम रात भर रखते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया रहे वो सब मर जाए। दूसरे दिन हमारा पूरा सब डीप क्लीनिंग होता है प्रॉपर, वाटर से, इससे डिटर्जेंट पाउडर वगैरह सब, एनविरॉल से। हाँ, इनोरल वगैरह सब। वो करने के बाद केजेस वगैरह सब क्लीन करके नेक्स्ट बैच फिर हम कैचिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है, और ये कंटिन्यूसली चलते रहता है ये ऐसा। कैट के लिए भी सेम है, डॉग के लिए भी सेम है। बस ये है कि कैट का केजेस थोड़ा अलग होता है और डॉग का केजेस अलग है। करेक्ट। और ये भी है कि हम एक बार अगर कैचिंग में, क्योंकि कैचिंग करने के टाइम में पता नहीं ना किसी को टीवीटी है, हाँ, डॉग को वो नहीं समझ में आता। या कभी इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनको छोड़ते भी नहीं है वापस। हम उनको पूरा ठीक करके ही पूरा छोड़ेंगे। ठीक करके ही छोड़ते हैं। Correct. Yes, anything you guys want to add to sterilization? Yes.
So we are the only NGO who actually runs blood before doing the surgery. Yes, And I on can say that 100% of the yes. cases, we don't do surgery without running the blood. Yeah, a lot of NGOs skip that step. In fact, they do it if they feel the need. There's a Exactly. percentage to it. We do 100, and people need to understand the context. The most expensive affair in the blood work is the slides. Yes. और ये चीज शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, जो हमारा स्लाइड्स का वेंडर है, ही इज द ओनली वेंडर इन महाराष्ट्र. With other vendors, हमारा ये होता है कि हमारा एक क्रेडिट सिस्टम चलता है when you procure medicines. So sometimes when you're running out of funds, NGO है, हमेशा funds का shortage रहता है, right? तो when you're running out of funds, the vendors give you the credit time. तो the animal is not dying. With slides, he blocks your supply. अगर आप 50 कुत्ते पकड़ के ले आओगे और अगर वो स्लाइड्स खत्म हो गई, he is the only vendor who provides in Maharashtra. यानी आपको वो पेमेंट चाहिए ही चाहिए for you to take your next lot. He बराबर doesn't give you any sort of credit. तो हमारे लिए एंड वो बहुत महंगी भी आती हैं. तो दैट्स व्हाट इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर एंड येट वी डोंट स्किप इट. दैट्स द डिसिप्लिन वी मेंटेन. कभी अगर फंड्स कम भी हुए तो हम स्टेलाइजेशन स्लो कर देंगे, लेकिन हम प्रोसेस से स्किप नहीं करेंगे. या प्लस वो प्रोसेस करने से क्या है, वो मतलब जो डेथ का मरने का चांसेस है बहुत मिनिमम ना के बराबर है. योड़ा में तो ना के बराबर है. I think this covers mostly everything except this one last thing I want to cover is our medical expertise, right? How strong we are medically, how connected we are medically. हम लोग का एक तो चलो हमारे जो vets हैं, our hiring is very steady and strategic and also very elaborate process. We are not just rolling out offer letter to vets just because we did an interview. We have a very elaborate process on the hiring also. एक तो हमारी मेडिकल एक्सपर्टीज में हमारे वेट्स आ गए, प्लस डॉक्टर करकरे हो गए, डॉक्टर मंदार हो गए, एंड डॉक्टर मधुरा, these are the kind of gems that we work with, right? So why don't you talk about our vets, our medical teams? Dr. Chaudhary, yes. Dr. Chaudhary now, yes. हम्म. But my favorite is Dr. Madhura. हाँ, She's fun और to talk सबके with. सबके फेवरेट है वो. Her point of view, you can just, close your eyes and believe it. And she's always correct. And the finesse she has in her surgeries, right? Exactly. Like when you do surgeries, it's like she's doing art. Literally. Even though it's science, but it's literally art. So yes, talk about our vets. I am the privileged one who have assisted her in like multiple Multiple Yeah. surgeries. People die Yes. for that moment, right? Exactly. Yes. Even Exactly. doctors don't get to do that. Exactly. Yeah. And she is so sweet, she's so calm all the time. When like we as a team, like just for fun, we started coming. I did this with you as well कि है ना मेरा ये मार्क देख रहे हो अभी Yeah. कैसे है कि इन्होंने ना एक बार फोन पे I didn't believe you though. Because she can't do it. because no one has seen her angry like ever. Oh, yeah. So it just is so abrupt when it comes for her. But damn, and she's so good with animals. She's always calm. I think that's where you like energies work, right? If you are calm, you can actually make the animal as well calm. Yeah. So yeah. And yeah, the finesse she has, I mean, the way she does surgeries, it's a treat to watch if you get to watch the Yeah. surgeries, right? And I've been assisting lucky her. to see her. Yeah, Yeah, that's... very sweet. Okay. Anything else about our vets, medical team? Anybody? डॉक्टर सैयद के बारे में बात करो यार. He's such a sweet अरे, man. he's the हाँ. Yoda. he's the डॉक्टर Yoda सैयद के साथ OG. सबसे ज्यादा इंटरेक्शन बाबू दादा का हुआ है. Yoda OG. आप बताओ सर के बारे में कुछ. सर के जैसा आईपीडी में डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है. Even in Hmm. OPD. और वो जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना शायद ही कोई डॉक्टर करता होगा. Correct. और वो वो- कुछ नहीं बोलते हैं. Correct. कुछ नहीं. हाँ. He एकदम. does more than I think 60 cases. Oh, more than Correct that, me I've if I'm counted. There wrong. was a day when nobody was there. He was alone. हाँ. He did 97 cases. Hmm. 97 on the register. So somebody had 2 cats, 2 dogs. Yes. I think it must have crossed 120. And he did it I alone. have seen that phase of his जहाँ पे he was अभी तो we have like a lot of assistants, but मैं when I joined Yoda मैंने देखा है उनको अकेले handle करते. For that patch, we didn't have vet. पहले like, just अकेले ही one थे vet वो. that time. वही कई बार हम लोग राजवी फ्रीक मैडम आउट आने हो से जाते पहले हैं. अकेले पहले ही थे अकेले वो. वही तो बोल रही हूँ मैंने उनको अकेले ही देखा है. And he's like very quick and very efficient हाँ. also. Efficient. I had Yes. yesterday I got a message from a lady in Virar. She once came for a rescue. तो वो जरूरी था उसको लाना था यहाँ से क्योंकि और कोई ले नहीं रहा था. But yesterday she messaged me कि मेरे बिल्डिंग के डॉक्टर में खांसी हो रहा है. Can I bring him to your clinic? I said उतना दूर से क्यों ला रहे हो? विरार में होंगे ना वेट्स. तो उसने नहीं मेरे को डॉक्टर सैयद पे बिलीफ है. This is how people trust him. I'll tell you one thing. I'm not sure if you would be comfortable, but edit कर देना अगर नहीं जमा तो. But I'll tell you this. He was going through a really rough patch recently.
his wife was going through cancer, and Yeah. still He used to come every day. he used वो to come coming every day. लगता भी Yeah. नहीं है लगता हाँ, अभी भी नहीं नहीं है, लगता। शक्ल से भी नहीं पर्सनली लगता। अपने को मालूम है हाँ। बट सामने वाले को पता भी नहीं पता चलेगा भी नहीं कि ये चलेगा। बंदा सामने वाला किस फेस में चल रहा है। Exactly, and तब भी फीडर्स आके लड़ाई करते थे, सब होता था, तब भी he used to say so calm all the time. And never retaliated. Never. Just again. Exactly. वो mental state में पहुंचना, I mean, personally, your mind is always with your family, right? Yeah. And still be so patient and like so focused on your work. It's an art. Yeah. Honestly, it's an art. So I realized somewhere when we had multiple vets, I kept giving his example. So शायद थोड़ा ना दूसरे vet को बुरा ना लगे तो मैंने बंद कर दिया. But you know everything that would happen, I was like, अरे सर को देख लो, वो तो कुछ नहीं बोलते. सर को देख लो, वो तो कुछ हाँ, नहीं बोलते. एक्चुअली वो वही ना। Then one of the things the other vet said, अरे वो तो भगवान है. बट एक्चुअली वो आई मीन मैं तो उनको रोज ये सवाल पूछती हूँ कि आप क्या खाते पीते हैं कि इतना शांत, मतलब इतना ज़ेन मोड आपके अंदर से आता क्या है? आप तो चाय कॉफी भी नहीं पीते? हाँ, no हाँ। break, ना, nothing. खड़े रहेंगे, नथिंग, 9 सिर्फ घंटा. जाते हैं लंच करके तुरंत वापस आ जाते हैं। And 6 बजे उनका शिफ्ट खत्म होता है, लेकिन अगर पेशेंट है तो 7 हाँ, साढ़े 7, 8 साढ़े साढ़े सात सात। खत्म नहीं होगा तब तक he will not go. हम्म। और जाते वक्त अगर कोई अंदर आ गया, he will attend and हाँ, go. लेते हैं। Lot of people say no, कल आ जाओ. अगर वो खराब केस है, he will see it there and there. कभी I'll tell you मना something- नहीं करना, yeah. nothing at all. Correct. I mean, And I'll tell you something funny about him. There are days when भीड़ नहीं है, crowd कम है, ठीक है? और अब तो अभी हमारे पास multiple vets we have in OPD. He is super humorous, very funny. हाँ, guy. बहुत His- Yes. बहुत his funny है वो। one-liners are like you will laugh your guts out क्योंकि वो ऐसे हाँ। comments मार देंगे suddenly and हाँ। 2 सेकंड सोचोगे फिर आपको याद आ गया. हाँ, जा। अच्छा, ये बोला. Great. So this is it. I think brilliant podcast. I think Yoda के बारे में एक podcast is not enough. We need at least 2-3 podcasts to cover the whole of Yoda. But largely, I think we covered everything. Or did we miss anything? Anything? Any last thoughts, everyone? We'll start with you, Meenal. See, my Talk only about Rocky. You wanted to talk about. yeah, Rocky. I'll talk about him, but my only thought is that the next time we are doing a podcast, we need 1 or 2 babies. हाँ, we'll A get to- Yoda podcast we'll do a without the podcast. minus the लिंगा babies. Yeah. लिंगा हाँ, लिंगा लिंगा रिंकू को ला नहीं सकते, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हाँ. बेबी लाली को ला सकते हैं। Yeah, we'll be distracted. I don't think No, so we'll we get नहीं, them. नहीं करेंगे। We'll do it at a home like setting. लिंगा नहीं, हाँ। लिंगा और लाली को ला सकते हैं। उसी नहीं आराम से नहीं नहीं, चला। लिंगा सो जाएगा, लाली भी सो जाती है, तो हाँ। हम ला सकते हैं। बट हाँ, तो But लिंगा you- लिंगा का अभी टॉपिक निकला तो उसका हाँ। रेस्क्यू स्टोरी भी बता देते। Yes, please बताओ. हाँ, हाँ, उसके बाद मैं बताऊंगी वो वाला जो रॉकी मैं वाला, बता रही थी। yes. रॉकी वाला नहीं, मतलब वो तो लिंगा को रेस्क्यू करने अनुष्का जी और इमरान गया था, तो आप बताइए। तो हम लोग को कॉल आया था, ये आईएनएस हमला है ना उधर, हाँ. शेल्टर के जस्ट आई थिंक 5-6 मिनट ही मारो दूर ही है। में ये वो। तो दे कॉल्ड अस कि बहुत अग्रेसिव डॉग है हम्म। और आप आ जाइए। तो हम लोग गए, लिंगा पूरा वही You should see. हम लोग गए वहाँ पर, उन लोगों ने नेट में ऑलरेडी उसको डाल के रखा हुआ था। And I'll और flash the picture on the screen जो लिंगा उस टाइम पे दिखता था. Yeah, आपको I दिखता said था. you उसका were mature, right? उसका स्टार्टिंग का नाम शैगी था। Shaggy. Shaggy लिंगा थार में लिंगा आया। नाम क्यों रखा था उसका? क्योंकि आप- उसके क्योंकि आई पिक्चर है, मालूम है आपको? आई हाँ, मूवी हाँ, है, विक्रम, उसमें विक्रम। जो लिंगेसन है हाँ. हाँ, उसके लिंगा- बॉडी उसका पे वो जो lumpy फोड़े फोड़े body- थे हाँ, ना, हाँ, हाँ, सेम उसके पे थे। थे, हाँ। अच्छा, 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 तो okay, वो नाम से रिलेटेड उसका नाम लिंगा रखा था, अच्छा। लिंगेसन। तो शॉर्ट में लिंगा, Yeah. वो लिंगा ही हो गया और अभी वो लिंगा ही सुनता है। हाँ। Amazing. तो So मैंने- फिर कैसे मैंने फिर क्या उसका हुआ नाम उसके बाद? बोला। नथिंग, हम लोग गए, हम लोग ऑटो में ही गए थे क्योंकि उस दिन एम्बुलेंस नहीं थी हमारे पास। हम लोग गए वहाँ और वो बेचारा नेट के अंदर ऐसे बैठा हुआ था। तो इमरान ने फिर बोला मैडम मैं पकड़ता हूँ, रुकिए। और कुछ नहीं, उसने नेट से बाहर निकाला और वो हमारे साथ ऑटो में चढ़ गया। ये अग्रेसिव था। इतना अग्रेसिव था ये। बट वहां से then how he looks now, पहले क्या था उसका पूरा स्किन प्रॉब्लम. So honestly, there were times Oh. when doctors had thought about the PTS part also, but again, Yoda But doesn't why do was that the fur all gone? because he had cancer. अच्छा, Oh. okay. I thought पूरे it was skin issue. बॉडी नहीं, में No, 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 no. पूरे multiple बॉडी में ऐसे tumors. खड्डे Multiple खड्डे और tumors. खड्डे के अंदर मैगेट, Oh. उसके बाजू से कोई नहीं जाता It था। was a bad cancer. हम्म। बहुत गंदा था Very वो। bad cancer. उसकी वजह से उसका एक आंख है। हम्म। And now Treatment today, is- what a now handsome he's- boy. अभी हीरो, Today he is the किंग ऑफ He's योडा। in OPD, he's a brand ambassador of says hello Yoda. to him and then comes in. हाँ. It's actually an achievement for Yoda because he's cancer free today and it Cancer. hasn't come back. Yes. उसको जब ठीक हो गया था, हमने कितना multiple times we have dropped him back to पहली INS बार support. छोड़ा, हाँ, वो बात बताओ. पहली बार हाँ। छोड़ा एम्बुलेंस से, हमला के पूरे अंदर जाके, मतलब हाँ. सुरेश ने जहाँ मुझे से जो लेकर आए लोकेशन थे। बताया ना,
कि ये एरिया का डॉग है। उधर जाके छोड़ा, वीडियो वगैरह लिया, सब लिया। अपना घूमते घूमते गया, हमको लगा अभी गया, ठीक है, रिलीज कर दिया। दूसरे दिन सुबह आ भाई गया साहब वो हाजिर street थे पे। दरवाजे पे। गेट पे तो खड़ा हुआ था। गेट पे खड़ा हुआ था। हाँ। तो बोला, कोई आके छोड़ के गया कि खुद आया? तो फिर एम्बुलेंस गया छोड़ने। दूसरे दिन सेम 4 बार सेम चीज हुई है। तो फिर Then we realize वो खुद ही आ रहा है। कि भाई जाने दो, उसको इधर रहना है, इधर कंफर्टेबल है। हाँ और वो कम से कम पिछले 4 साल से योड़ा के साथ ही है हाँ और मस्त में है अभी। वो मैं बाबू दादा के घर भी जाता है। Correct. मेरे हाँ, गाँव मैंने तो सुना गया है। था। वो हाँ, मेरे घर और कभी ऐसे दुकान यहाँ वहाँ सब जगह घूम के आता है। सब जगह मैं मेरे को बस मंदिर स्टॉप जाता तक है। छोड़ने आता था वो। हाँ। Yeah, I know. He used to come back again then. भाई मेरे गाँव लेके गया था उसको। 15 दिन वो मेरे गाँव में था और गाँव में जितने भी छोटे बच्चे थे ना, सबको पागल किया था उसने। सब जो भी आता था ना, लिंगा का लीश लेने का, घूमने को जाने का। वो बंदर को ये करते हैं ना, डॉग हाँ। मोस्टली मतलब हाँ, क्या बोलते हैं ऊपर। उसको? Worship करते ना। हाँ, हाँ। वो करने को जाने का, नदी में तैरने को जाने का। ओह, कितना प्यारा। हाँ, आप पेड़ के नीचे मस्त में दोपहर में सोने का, No, वो but सब बहुत एंजॉय time किया pass वो। था। के बाद है ना 15-20 दिन बस सो ही रहा था शेल्टर पे। हाँ, नहीं, सो ही रहा था। उसको He was so tired. उसका 4-5 किलो वजन कम करके लाया था। हाँ, एक्चुअली वो वेट लॉस करके आया आके था। ऐसे थका हुआ था, ऐसे कोई मजदूरी करके आया हो। Yes, good. So ऐसे तो बहुत stories हैं, ग्रेसी है, बहुत we have बहुत सारी Bunny, हैं। but that's why I said बहुत one सारी episode is not enough. नम्या Oh, yeah. उसका नाम्या का तो रात को 12-12:30 बजे हमने हम्म। रेस्क्यू किया था नाला सपारा से। तितली। हाँ, Yeah. अरे तितली, So many stories we पेंची, have. बहुत ये बहुत सारे। You want to add anything? हाँ, वो रॉकी वाला पार्ट मैं Please प्लीज बोलिए। बोलना चाहती हूँ। क्योंकि नहीं, मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि बाबू दादा जैसे मतलब वो बहुत इमोशनल हो गए उस मोमेंट पे कि उन्होंने मिली को रेस्क्यू किया था एंड जब उनको छोड़ना पड़ा। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास एक जर्मन शेपर्ड थी जो एकदम मतलब मेरे से चिपकी रहती थी। मतलब लगता था, मेरी बातों से पूछती थी कि अरे यार उसने ही पैदा किया है क्या, तुझे सारा दिन उसके साथ चिपक के रहती थी। तो वैसा तो पिछले 2 साल पहले वो हमको छोड़ के चली गई। तो जब ये रॉकी आया शेल्टर पे, तो उसको देख के ना मुझे उसी की याद आ But उसके गई। पहले क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं पहले गया था हाँ। and I called Anushka and I said ये क्यों लाए यहाँ पे? अब तान्या आएगी, she will say let's take her आपने home. मुझे भी ये चीज हाँ। बोली। And then she came and she said exactly the हाँ। same thing because she looked exactly like you. एकदम लियो। इनफैक्ट आई थिंक कुछ दिन पहले जब उसका वो हम लोग कुछ प्रोसीजर करने के लिए उसका वेट ले रहे थे, यकीन नहीं करोगे, धीरज, मैं ओपीडी में थी, धीरज ओटी में था उसके साथ। धीरज ने मुझे कॉल किया कि तान्या अब भी आओ। मैंने बोला क्या हुआ यार इतना अर्जेंट? नहीं अब भी आओ। मैं आई ना, उसने मेरे को उसको वहीं खड़ा रखा था, वो खड़ा भी है वो। और धीरज ने बोला तान्या तुम उसका वेट देखो। उसका वेट मतलब और लियो का वेट एकदम सेम। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरी नीस के अच्छा मैं मेरे घर पे ना मैं रेगुलरली सारे बच्चों का पिक्चर भेजती रहती हूँ, तो मेरे घर में सारे बच्चों को सब जानते हैं, ठीक है। इसका मैं और भी भेजती थी क्योंकि मेरे पापा को इसमें खास इंटरेस्ट है। मेरे पापा थोड़े ज्यादा अटैच थे लियो से। तो इसका जब भेजा ना, सब लोगों ने बोला कि हाँ यार ये तो वही है। मेरी नीस ने पता है क्या बोला? मेरी नीस ने बोला एक्चुअली वो चली गई ना, वो अभी वापस जन्म लेके लड़का बन के आई, क्योंकि मेरी वाली फीमेल थी। फीमेल। Ironically बताऊँ, ये रॉकी का एज भी about 1 year है अभी. हाँ, He's not very old. ओल्ड। तो ये हुआ एंड हाँ एक्चुअली मतलब वही उस टाइम के बाद ही Same शायद time. वो, हाँ। तो वो हुआ, तो धीरज और मैं धीरज को बोल रही थी कि मुझे चाहिए। मैंने घर पे बोला मेरे पापा को चाहिए, तो मेरे पापा बोला ठीक है लेके आओ। तो मेरी ले मम्मी लेते ने भी फिर बोला अनुष्का. ठीक है, बट मेरी तो मम्मी ने अभी साइन कर लेते हैं। नहीं, ले but- अड़चन हाँ, हो ले गया। लेते। तो मेरी मम्मी ने एक्चुअली, बट मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे बहुत मन था एंड धीरज ने भी मुझे बोला, वो हम दोनों सोचे थे ले नहीं ले। बहुत बार हुआ है, धीरज ने बोला तान्या ले आते हैं, बट मैं इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि सब जानते हैं कि मेरे घर में जेरी है। जेरी बहुत ज्यादा No, but अग्रेसिव if we है, can मेल fix मेल। it by using Abhishek हाँ, sir, बट आई एम जस्ट सेइंग but I दैट। think we should consider अभी वो हाँ, बट we मैं should- बता रही by हूँ the कि- time the episode goes out, we should People. put it Rocky is adopted. अनुष्का मेरे को बाबू दादा ने ये भी बोला है, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, बाबू दादा ने मुझे ये बोला है आप सिर्फ एक बोलो। बार हाँ बोलो, हम सीधे कुछ drop करने के लिए मैं खुद जाऊंगा उसे छोड़ने, आपसे हाँ बोलो। हाँ We'll मैं talk to अभी- Abhishek. We'll get Jerry हाँ। acquainted with another guy because female के साथ तो handle हो जाता था, Handle. but बट नहीं, मैं क्यों बोल रही थी ये रॉकी वाला, तो फिर हमने ना इवेंचुअली
मैंने धीरज को बोला कि ठीक है धीरज जाने दो उसे, अनुष्का उसके लिए अच्छा घर ढूंढ रही है एंड आई एम श्योर वो उसके लिए बेस्ट ही ढूंढेगी, जाने दो वो कहीं और, मतलब उसको अगर कोई अच्छा फैमिली मिले, यू नेवर नो, क्या पता हमसे भी बेटर फैमिली मिल जाए एंड मुझसे भी ज्यादा अच्छी माँ मिल जाए उसे, तो बराबर। जाने दो उसे। एंड कल वो चला गया और आई थिंक हाँ मैं थोड़ी इमोशनल हुई थी, मेरी थोड़ी अनुष्का से ना इस बात पे थोड़ी किचकिच भी हो गई कि अरे मैं नहीं थी अनुष्का यार, तुमने भेज दिया उसको। बट अनुष्का ने बोला कि तान्या हम चलेंगे उसे मिलने, और वो लकीली वो कांदिवली में रहता है, मतलब उसको घर भी वहां पे ही ऊपर वाले ने दिलाया कि ठीक है बेटा तो टेंशन मत ले, तू चाहे तो रोज मिलने जा सकती है। एंड उसका ओनर भी बोला या कम ऐसा ना एनी हो टाइम। ओनर एक दिन परेशान होकर बोला कि यार तुम ही ले जाओ हाँ, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बाबू दादा की उस बात पे कि बाबू दादा बहुत इमोशनल हो रहे थे, बट क्या होता है ना कभी कभी हमारे खुश मतलब नहीं बच्चों नहीं के वो अच्छे के लिए हमें जाने देना चाहिए, तो आई वो थिंक वो खुशी एक तरफ रहती है बट उनका इमोशनल टच होता है ना हाँ वो रह वो जाता है। वो नहीं नहीं वो वही मैं बोल रही हूँ रह कि फील जाता होता है, बट हम अपने सोचते कि अरे यार बच्चा खुश रहेगा उसके लिए वही ना, it's like a conflict of emotions. इमोशन। हाँ I think we have constraint of time, but just like I said, 2-3 episode भी काम है, इतना सब है हमारे पास बात करने को. Such a long journey we all have had. One last shout out to everybody at Yoda, our vets, you guys, our boys, our managers, our sub founders, right? This is together a huge and the best family ever. Kudos to everybody. You guys are doing a brilliant job and keep it up, everyone. So I would like to just add one more thing Yes. about our CEO, Mr. Dheeraj Tejwani. Okay, embarrass me now. No, seriously, since you have come to Yoda, you have changed things a lot and all for better. We are really thankful. We are really grateful to you. आपकी वजह से we can actually like honestly stand a little better. Like we were walking, but you made us run now. No, thank you so much, Meenal. But I think we can only do all of this because I'm as effective as the team, right? So I'm only able to execute because you guys are there as my backbone. मतलब कभी भी ऐसा मतलब लगता नहीं है कि सामने सीईओ सर बैठे हैं या कुछ है। हाँ लगता है कि बनता अपना ही दोस्त है मतलब नॉर्मली भी बात करते हैं हाँ। धीरज भाई ये करना, धीरज भाई ये करना, धीरज भाई ये है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा करना है, वैसा करना है, हाँ इट्स ओके, उनको सही लगा, अप्रूवल दे दिया, बात खत्म। हाँ. and us as managers know we needed someone to look up to, so now we have someone. I'm always there, and please reach out. I always taken phone calls. I've always taken issues. People used to पहले शुरू में डरते थे इसको क्यों परेशान कर, मैं बोला करो, मेरा काम है परेशान होना. I'm here. पता था कि क्यों ही बोलो, but वो हाँ भाई this guy has been available even at 1 at night. रात को 2 बजे भी करो। और वो शेल्टर भी वो शेल्टर आते हैं रात को 2 बजे, मुझे वो एक तो दिन याद उस है टाइम रात पे में बारिश, हाँ हाँ 3 बजे रात को, चिल्ली को ढूंढने जाते रात को 3 बजे. बारिश आई तो you हम्म. go to the बारिश। shelter. Yeah. I mean no one does that with so much See, I'll tell you the setting. एक तो हूँ, see, I'm a workaholic. Plus, before joining Yoda, I was anyways working 14 hours for a cause or a purpose that I didn't care about. ठीक है. Now, तो this is making me even more passionate. एक तो मैं workaholic हूँ. I have that huge OCD of working 15-16 hours. उसके ऊपर understand the setting. See, the founders were also doing their day jobs, right? They all had their profiles and their portfolios to manage and stuff. This was their side hustle, not even side hustle. This was their passion, but they had another commitment also. I come for just taking care of Yoda, right? तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं मेरा काम ही ये करना. So don't hesitate from reaching out to me because I don't want to take a wrong call just because. हाँ, आपको ज़्यादा ही हो जाता है. हाँ, but yeah, I want to prevent you guys from taking a wrong call. Otherwise, so I know you guys are kind of better at this than me in some of the things, so I don't even have to worry about it. आप तो कुछ अच्छा बताएंगे नहीं हमारे बारे में. मेरा बोलना सही भी नहीं होगा ना, हाँ. क्योंकि सब बोलेंगे अरे Fair, मतलब yeah. अपने फैमिली के बारे में अच्छा बोल रही है, हाँ, but no, fair. ठीक है. बट नहीं, मतलब मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि हाँ मतलब मेरे लिए जब मुझे पहले डॉगी लाना था तब मेरे को धीरज ने बोला था ना ले लेते हैं, कुछ सोचने की बात नहीं है, ले लेते हैं. और हमने बाय द वे कभी खरीदा नहीं है, कभी ब्रीड डॉग भी नहीं लिया है. All मेरे rescued. बच्चे सारे हाँ रेस्क्यूड एंड अडॉप्टेड ही है. I don't think Yoda में किसी के पास ऐसे है. सबका All rescue rescues. है. हाँ, एक ये और दूसरी बात है कभी भी कुछ भी आता है, क्योंकि लोग मैं थोड़ी बदनाम भी हूँ योडा में.
क्योंकि मैं सारे बच्चे ले लेती हूँ, सब सारे डॉगीज ले लेती हूँ, लास्ट puppies, लास्ट cat। वीक 5 पपी लेके फर्स्ट डे हाँ। ज्वाइनिंग, नहीं फर्स्ट डे ज्वाइनिंग किया है, कुट्टू स्क्वाड मिस किया है पहले मतलब दिन। मैं- हाँ। पैपी खार में Pappy, आता हाँ। शाजिया का कुट्टू शी डिड। हाँ, मैं थोड़ी बदनाम भी हूँ क्योंकि सब बोलते हैं अरे यार मतलब तान्या ने देख लिया तो Admit, अब admit. सब अंदर। हाँ तो बट हाँ, मुझे वो सपोर्ट मिलता है तो मैं ना पहले, अच्छा मेरा 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक तो धीरज, ठीक है, और नहीं तो बाबू दादा, ठीक है। बाकी लोग तो ये लोग तो सपोर्ट ही करते हैं कि ठीक है ये जो इतनी भी है। शानी है, हाँ। ये ना इसको पता है हाँ। इसने रिंकू को एडमिट करवाना हाँ। था, ठीक है, इसको पता है धीरज को पूछे कि झाड़ देगा, हाँ, मैं सीधा बाबू बिकॉज दादा रिंकू का स्टोरी एवरीबडी नोज है, शी हाँ। कुड हैव बीन देयर बट शी हैड दैट अनदर पर्पस व्हाई शी वांटेड टू टेक रिंकू। इसने बाबू दादा को फोन लगाया, बस बोला दादा ये कर दे क्या, all do that. हाँ। हाँ बट We लेकिन animals, we all हाँ। do that. नहीं पर Sometimes when we know that you might say no, we go other हाँ, way. मैं हाँ बट आई डोंट से नो टू एनीबडी एल्स। Anybody else? मेरे को अनुष्का ने फोन किया था एक बार कि इसको लाएं क्या, मैंने बोला आपको लाना है, इफ यू वांट टू सेव अ लाइफ यू सेव अ लाइफ, यू डोंट आस्क मी। मैं इसको इसलिए मना करता हूँ बिकॉज वो उसके बस में छोड़ा तो शेल्टर पे पूरा मुंबई के डॉग्स आ जाएंगे। तो नहीं, बट मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि नहीं, मेरे को धीरज ने बोला है कि तान्या तुम खुद भी डिसाइड करो, अगर वो एनिमल को जरूरत है तो ले लो, ऑब्वियसली मतलब यू हैव टेक अ कॉल एज अ मैनेजर। और बाकी कभी कभी जब मुझे लगता है कि मैं धीरज को बोल नहीं पाऊंगी, तब मैं ये मोमेंट लेना चाहूंगी बोलने के लिए कि मैंने, बाबू दादा ने मुझे कभी ना नहीं बोला, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और खास करके ये रिंकू वाला मैटर मुझे आज भी याद है, मैंने बाबू दादा को फोन किया और मैंने बाबू दादा को, मैं बहुत चुपके से बोली बाबू दादा प्लीज आप बोलना मत, एंड बाबू दादा ने मुझे बोला आज रात आप कैसे भी करके वो बच्ची को उधर रुकाओ, कल अभी ड्राइवर नहीं है, कल मैं भेजता हूँ। और पहला चीज सुबह उठ के उन्होंने गाड़ी भेजा। तो थैंक यू सो मच बाबू दादा, वो टाइम्स के लिए जब मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मैं किसी को रीच आउट नहीं कर पाती और आप होते हो। वेलकम। ग्रेट। मतलब और 4-5 बच्चे। All right, on that note, let's end the podcast. Thank you all again. Good job. Keep it up and keep saving lives. Keep making some difference in animals. All right. Thank you. Thank you. I'm glad you made it this far and thank you for watching this episode. Looking forward for your support for all my future episodes. So please like, share and subscribe. Thank you.